2023 اور 24 کے بجٹ کے متعلق میری پارٹی کی اپنی جو پولٹ بیرو ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں اپنا موقف دے دیں۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے 75 سالوں میں۔ کہیں کامیابی کہیں ناکامی ہوئی، 3 بار مارشل لا لگا، پھر جمہوری حکومت سلسلہ چلتی رہی۔ تو اس دوران لوگوں کی زندگی میں وہ بنیادی سہولتیں نہیں ہوئی جو باقی ترقی یافتہ دنیا میں ہیں۔ اس وقت ملک ایک مالی بحران کی جو کیفیت سے دوچار ہے شدید، اسی حوالے سے بلوچستان بھی اپنا بجٹ بنانے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان وہ بڑا صوبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کے لیے اس زمین کے نیچے دولت کا انبار پیدا کی ہے۔ اس کے سینے اور بدن میں سونا، چاندی، گیس، منرل، سمندر، لیکن اس کے باوجود آج بھی بلوچستان کے لوگ بنیادی تعلیم، علاج، روزگار سے محروم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ ہوتا، لیکن وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے یہاں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہم بجٹ بنانے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس پوزیشن پہ یہ بجٹ بنائیں اور بلوچستان کے 2.10 کروڑ عوام کو ریلیف دے سکیں۔ ہماری تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے یہاں انارکی بھی بہت سے وقت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، جمہوری عمل کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس ملک کا مستقبل ہی جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے بجائے اگر پنجہ آزمائی کی کوشش کی جاتی ہے، طاقت کی قوت سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گی، اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس پنجہ آزمائی میں پورا نہیں ہو سکتی ہیں۔ 25 کروڑ کی عوام نئے سینسس سے جو 25 کروڑ کا جو یہ ملک ہے، اس میں بنیادی طور پہ ضروری یہی ہے کہ جمہوری عمل کو چلنے دیں۔ جمہوریت وہ عمل ہے کہ سمندر کی مانند ہے، جسے خود بخود یہ گند نکلتے جاتے ہیں، ایک فیور چیز ہوتی ہے۔ الیکشنوں میں پیراشوٹ پہ آنے والے اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں، اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے حقیقی جو لوگ ہیں جن کا احتساب عوام ہی کو کرنا ہے 5 سال کے بعد، آنے والے الیکشن میں یہ ہونا چاہیے کہ فری الیکشن، انصاف کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، شفاف الیکشن ہو، تو تب اس اسمبلی میں وہ قابل لوگ آ جاتے ہیں جو قانون سازی کر سکتے ہیں۔ یہاں لیجسلیشن ہوتی ہے، اس کے قانون سازی ہوتی ہے، جس کو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ پیسے دے کے الیکشن جیت سکتا ہے، پیسے دے کے وزیر بن سکتا ہے، تو پھر یہ یہاں بلوچستان کی ترقی کہاں ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے سیلاب ہماری آئی، اس سیلاب میں بحیثیت ایگریکلچر منسٹر جناب صحافی حضرات میں آپ کو بتا دوں 300 ارب کا نقصانات بلوچستان کے زمینداروں کو ہوا، 300 ارب، لیکن ہمیں مرکز کی جانب سے 1 روپے ٹیڑھی پیسے بھی نہیں دیے گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو 16 ارب دیں گے زمینداروں کی خاطر، پھر 8 ارب دیں گے، پھر 6 ارب، پھر 2 ارب، آخر میں 1 ٹیڑھی پیسہ میں نہیں دیا گیا۔
यहाँ के ज़मींदार इतने तबाह और बर्बाद हुए, जिन्होंने लोन लिए थे उनके सोलर तबाह हुए, ट्यूबवेल उनके तबाह हुए, लोगों की फसलें तबाह हुई। मेरा ताल्लुक चूँकि मकरान से है, मैं बीलांग पंजगूर से, तो वहाँ 2 अरब का जो मुज़्ज़ाती खजूर है वो भी तबाह हुआ, उसकी फसल भी तबाह हुई। एक टेढ़ी पैसा हमें मरकज़ की जानिब से नहीं दिया गया। हमने अपनी तरक्याती बजट से कटौती करके कुछ सीड लोगों को हमने दिया, उससे काफ़ी हमारी खुराक की ज़रूरत पूरा हुई। तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो मरकज़ की जानिब से हमारी आइनी और कानूनी हुकूक हैं, इनिफ्सी अवार्ड में बलूचिस्तान का जो शेयर है वो प्रोटेक्ट है। आइन में 18वीं तरमीम के बाद साफ लिखा हुआ, लेकिन हमारा वो शेयर भी हमें नहीं मिला जिससे हम प्रोजेक्ट थे वो सफ़र करने लगे। आज तक भी कम से कम 500 ऐसे स्कीम हैं जिसको पेमेंट नहीं कर सके। इसके साथ ही हमारे PPL के मजमूई तौर पे 50 अरब के मरकज़ इस वक्त भी कर्जदार हैं, वो देने के लिए तैयार भी नहीं है हमें। तो बजाय कि हमें पैकेज देते, बजाय कि वो बेहतर तरीके से बलूचिस्तान की पसमानदगी, ये ज़ख्म जो सैलाब के दौरान लगी हुई थी, इस पे मरहम लग के, मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ, साफ़ी हज़रात आप भी थे, मैंने असम्बली के फ्लोर में कहा है, 10 अरब का ऐलान शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म ने किया था, एक टेढ़ी पैसा हमें नहीं दिया गया। इससे पहले सैलाब के दौरान $2000 मिलियन बलूचिस्तान और मुख्तलिफ सैलाब के पूरे पाकिस्तान के हवाले से आए हुए थे, जो हमारा शेयर था वो हमें नहीं दिया गया। इसके साथ जिनीवा में एक डोनर कॉन्फ्रेंस की गई, उस डोनर कॉन्फ्रेंस में 40 ममालिक ने हिस्सा लिया, उसमें भी $10 अरब का ऐलान हुआ, उनमें से भी एक टेढ़ी पैसा में नहीं दिया गया। और उस डोनर कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान की तबाहाली का वीडियो दिखाया गया, आप सब ने देखा था इसमें। तो हम समझते हैं कि हमारे साथ इंतहाई ज़्यादती हुई, और इस वक्त IMF भी अब लोन नहीं दे रहा है मरकज़ी गवर्नमेंट को। वो यही कह रहे हैं कि जितने भी पैसे हमने दिए थे आपने गलत इस्तेमाल किए हैं, आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से हमें पैसे देंगे। जनाब साफ़ी हज़रात, एक बात आप जहन में याद रखें, इस मुल्क ने 75 सालों में बिलियन से बिलियन डॉलर कर्ज लिए, उसमें बलूचिस्तान का 1% बलूचिस्तान पे खर्च भी नहीं। ये इंतहाई, आप भी बलूचिस्तान के इस सरजमीन के इस मिट्टी से हैं। बिलियन से बिलियन डॉलर कर्ज लिए गए, 1% बलूचिस्तान में खर्च नहीं हो, ना तालीम पे, ना हेल्थ पे, ना एग्रीकल्चर पे, ना कम्युनिकेशन पे। आप भी, हम देख रहे हैं, कल जो इनका टीवी में पट्टी चल रहा था, 430 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वो कहते हैं साल हम देंगे। हम कहते हैं लोगों को बेकारी नहीं बनाओ, लोगों को फकीर नहीं बनाओ, लोग रोडों पे भीख नहीं मांगे। इन 430 अरब में बलूचिस्तान में अगर 20 अरब से 30 अरब दिया जाए या 50 अरब हमारे हिस्सा दिया जाए, हम भीख नहीं मानते हैं, हम हक मानते हैं। इससे बलूचिस्तान में मकरान में खजूर का बड़ा फैक्ट्री भी लग सकता है, वहाँ 50,000 लोग नौकरी पे भी लग सकते हैं। यही हमारा जो काटन का फसल है, बहुत से इलाकों में बलूचिस्तान में इस वक्त 22 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक काटन पैदा हो रहा है, उससे बड़े बड़े कारखाना लग सकते हैं, रोज़गार का एक मौका पैदा हो सकता है। बलूचिस्तान में कम से कम 1 लाख लोग रोज़गार कर सकते हैं। हमारे लोगों ने आंखों में रखा है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई चपरासी लगाए, कोई चौकीदार लगाए। जहां मुल्कों ने तरक्की की है प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने मनसूबाबंदी की है,
यहाँ कोई मनसूबा बंदी नहीं है, सिर्फ लोगों को बैन अल-अक़वामी तौर पर बेकारी बनो, फिर यहाँ आके लोगों को बेकारी बनाओ। इस तरीके से मुल्क तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप देखें, बांग्लादेश आपके सामने है। परसों बांग्लादेश ने अपना बजट पेश किया, 71 अरब डॉलर का बजट, तरक्याती बजट पेश किया। और वहाँ फीकस आमदनी पता क्या है? $26,000 फीकस आमदनी माहाना है, और यहाँ 17,000 रुपये। बांग्लादेश में कोई सिवा समंदर के, कपास के, चावल के कुछ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ तो हमें अनान ने तबाह किया, पर्सनल मफादात ने तबाह किया, पार्टियों का रेस लगा हुआ है, कौन पार्टी आगे बढ़ रहा है, कौन आगे जा रहा है। मुल्क की जो किश्ती है समंदर में, वो जितना भी डूब जाए मईशत का, उसका तो किसी को परवाह ही नहीं है, तो इसी पे लगे हुए हैं वो। तो इस तरीके से मुल्कें तरक्की नहीं करती, कौम नहीं बनती हैं। तुर्की आपके सामने, उर्दगान तीसरी दफ़ा आ रहा है, बड़े 2/3 मेजॉरिटी पे आ रहा है। किस लिए? उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया, लोगों को सुना, उनके मसाइल सुने। हम समझते हैं कि इसका वाहिद हल यही है, मिल बैठ के। बलूचिस्तान की खासकर अवाम से मैं अपील करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों से मैं अपील करता हूँ, एक हो के बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ें, ताकि बलूचिस्तान आने वाले वक्त में हम अपने आने वाले नस्ल के लिए एक बेहतर से बेहतर मैसेज आगे लेके दे रहे हैं। इस तरीके कार से जो अब इस वक्त हम चल रहे हैं, लोन में कभी आपका ज़िंदगी गुजार आप नहीं सकते हैं। IMF से लोन हर मुल्क ने लिया, फिर उन्होंने जामे मनसूबा बंदी की, लोन अपने वापस किए, उसके बाद अपने पैरों पे खड़े हो गए। लेकिन हम लोन लेके खाते रहे, लोन लेके बड़े से बड़े पैमाने पे अपनी ज़ाती मफादात को प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन यहाँ इस वक्त बेहतर से बेहतर है कि टाइम पे इलेक्शन हो, जो आइन में लिखा हुआ है आइन को वायलेशन नहीं किया जाए। तो इस तरीके से जब कानून की बालादस्ती होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर कानून की तशरीह लाइक और डिसलाइक में हो तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो हम समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो हम बजट बनाने जा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ दे दें। अगर बलूचिस्तान के अवाम को सही तरीके से रिलीफ नहीं मिल सकती है, यहाँ लोग बेरोज़गार होंगे। इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान में 50,000 लोग नौजवान बेरोज़गार हैं। ये 50,000 लोगों को अगर हमने रिलीफ नहीं दिया, रोज़गार के मौके नहीं दी, तो अनारकी पैदा होगा। ये बंदे ज़ारे डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, तो फिर एक लाइन आर्डर का सिचुएशन पैदा होगा, एक टर्माइल होगी। तो उसके बाद फिर आपको बड़े पैमाने पे लाइन आर्डर सिचुएशन पे पैसे रखने होंगे, जो इस वक्त बलूचिस्तान में 30 अरब सालाना लाइन आर्डर सिचुएशन पे खर्च किया जा रहा है। हम कहते हैं कि लाइन आर्डर सिचुएशन पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये तालीम, सेहत और रोज़गार के तौर पे खर्च हो, यही बेहतर रहेगा। बलूचिस्तान की आबादी इतनी आबादी नहीं है, वसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन इसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए बेहतर है। आपका कोई अगर किसी का सवाल, यहाँ पर आपने कहा कि जमहूरी रास्ता और का जो बुनियादी हक के मरकज़ के हवाले से जो आईनी वो शेयर हमने बता दिया, वो आज के दिन भी 500 स्कीम हमारे फाइनेंस में पड़े हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारा क्वार्टरली शेयर आता है, अगर मरकज़ से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, यहाँ तरक्याती काम नहीं हो सकती। इस वक्त तो बजट बनाने जा रहे हैं, हमारे इतने बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट हैं, ये भी आप नोट करें। ये क्वेटा जो हमारा चमन क्वेटा शाहरा है, 75 साल के बाद अभी भी अनकम्प्लीट है। ये सूबे की गुंजाइश नहीं है इसमें। हमारा चीदगी और अवारान टू कराची एक बेहतर शॉर्टकट नियरेस्ट रूट है,
जहाँ से पूरा 5-6 घंटे का रास्ता ईरान के बॉर्डर से बैन अल-अक़वामी शहर पोर्ट कराची तक अभी 75 सालों में नहीं बना। वो हम नहीं बना सकते, मरकज़ की जिम्मेदारी है। जहाँ असम्बली में भेजने का ताल्लुक है, इस असम्बली में मेजॉरिटी लोग तो पैराशूट पे आए हैं, ये किसके लिए काम करेंगे? तो फ्री इलेक्शन करने दें ना, शफाफ इलेक्शन करने दें लोगों को। इस तरीके से तो नहीं होता है कि डेथ स्क्वाड के जरिए टप्पा लगा के लोगों को असम्बलियों में भेजें, ये कानून साजी तो नहीं कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि वोट की जो तकद्दुस है, वोट का जो हक है, वो हक लोगों को दिया जाए, उससे लोगों को महरूम नहीं किया जाए। इससे इस मुल्क की बका के लिए बेहतर है, इसकी मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, आने वाले नस्ल के लिए बेहतर है। इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से मैंने अपने असम्बली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वहाँ से चिट्ठी लेके आके यहाँ पढ़ते हैं। कराची कासिम पोर्ट के हवाले से बहुत से चीजों पर रोक किया, फिर भी हम सिर्फ ये बहुत एक अच्छा सवाल है आपका। लेकिन अब्दुल्ला, मैं इसलिए कहता हूँ कि जमहूरी अमल ही बेहतर है। जहाँ 4 इकाइयाँ सूबे की, इन 4 इकाइयों में हमारा जो जितना भी असम्बली के मेंबर हैं, नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के हमारे मेंबर हैं, अगर जमहूरी तरीके से हमें सुनने की वो सलाहियत रखी तो ज़रूरत नहीं है कि हम गैस जाके बंद करें। लेकिन यहाँ जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। पंजा आजमाई का एक कुव्वत और ताकत की बलबूते पे चीज़ों को चलाया जा रहा है। अगर मीर कुद्दुस कल कहे कि मैं गैस यहाँ रोक लूँगा, कौन रोक लेगा? मीर कुद्दुस वहाँ से बिजलियों को लेकर के रोक लेगा। जहाँ आइन की बालादस्ती होगी, अदारे हर एक अपनी जगह पे मजबूत और कायम रहेंगे, पार्लियामेंट अपनी जगह, आपका जो मीडिया है वो अपनी जगह, बाकी अदारे कुव्वत वो अपनी जगह, तब एक पेज पे हो के मुल्क और कौम बनते हैं और तरक्की करते हैं। यहाँ नवाब अकबर खान ने यही ट्राई किया ना, तो क्या हुआ मेरे भाई? आपसे कह रहा हूँ, उसने कहा कि गैस नहीं छोड़ूंगा, तो क्या हुआ? इसलिए हम समझते हैं कि लोग, ये मुल्क 25 करोड़ अवाम का है, तो अवाम जिसको मुंतखब करे कम से कम आईनी तरीके से उसको इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए, तब एक बेहतर से बेहतर एक रिजल्ट हो सकती है। आपके भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें जितने भी यहाँ लिखारी हैं उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कालम लिखते हैं, जो अदीब हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो दानिश्वर हैं, सब बोलें विदन फ्रेमवर्क का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक स्ट्रगल हमारा हक है, कौमी जमहूरी तरक्की पसंद स्ट्रगल हमारा हक है। हम पहाड़ में रेपल लेके नहीं जाते हैं, हम कहते हैं हुकूक लड़ने की खातिर असम्बली सबसे बेहतर मोर्चा है। इस मोर्चे को इस्तेमाल करके जमहूरी तरीके से हम अपना हक की डिमांड करते हैं। आपने रशीद जहाँ बहुत अच्छा सवाल किया। जहाँ तक हम कभी अपोजिशन में होते हैं, हम तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान से बाप के भी नेशनल असम्बली में MNA बैठे हुए हैं और कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं, BNP मेंगल के भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जमीयत का बैठे हुए हैं, और इस मिट्टी से बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। होना तो ये चाहिए था कि कैबिनेट के मीटिंग में जहाँ शहबाज शरीफ बैठ के वहाँ सदारत करता, वहाँ वो अपना आवाज़ बुलंद करते। इस गरीब सूबा गरीब नहीं है लेकिन गरीब बनाया गया है, इसके लिए वो स्ट्रगल करते। आने वाले इलेक्शन में जब इलेक्शन होगा, लोग इनसे ये सवाल ज़रूर करेंगे, जो सवाल आपने मुझे किया उनको ज़रूर ये सवाल करेंगे। हमने तो मुख्तलिफ वक्त और मुख्तलिफ अदवार में असम्बली में अपने करारदाद पेश किए। एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रियासत में एक तरीक़ाकार होती है और पार्लिमानी एक तरीक़ाकार यही है, जहाँ उनके इकाइयाँ हैं वो अपने असम्बली में सिफारिश करती हैं मुख्तलिफ जो उनके मसाइल हैं, कौमी मसाइल हैं, जिससे मरकज़ से उनकी ताल्लुक़ है। यहाँ से सिफारिश की जाती है। हमारे मुत्तफ़िक़ा तौर पे बहुत से सैलाब जब हमारी हुई, हमारे गैस का मामला है, हमारे ड्यूज़ के मामले हैं, NFC के मामले हैं,
یہ سارے ہم نے قرارداد وہاں پیش کی ہیں. تو قرارداد کو سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں یا بازانت نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اپنی جمہوری طریقے سے جو رستہ ہے اس کو اپنا رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ یہاں سے لاٹھی اٹھا کے وہاں تو جا کے بات تو نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا ایک جمہوری طریقہ ہے، اس جمہوری طریقے کو اپناتے ہوئے ہم اپنا میسج وقتاً فوقتاً اسمبلی کے فلور سے مرکز کو دے رہے ہیں. تو مرکز والے اگر ان چیزوں کو نہیں سنتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، اور ایسے کمزوریاں اس بنیادی جو چیزیں ہیں، بنیادی جو سیڑھی ہے، بنیادی جو پلر ہے، اس کو کمزور کر دیں. ڈپارٹمنٹ میں مرکز سے کچھ پیسے آ گئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کریں. ہمارے ہاسپٹلوں میں ہر جگہ آپ جائیں لوگ یہی رونا روتے ہیں کہ دوائی نہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل میں جائیں، اگر دوائی کے پیسے لیپس ہوتے ہیں تو یہ وہی محکمے کی اپنی جو منسٹر ہے، اپنی اس کی جو بیوروکریسی ہے، یہ اس کی نالائکی ہے کہ انہوں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے. نہ تو عوام کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی پنشمنٹ ہونا چاہیے. میر صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے اور ہم کا بنائیں گے. ابھی آپ کا بھی 7,300 خسارے کا بجٹ مرکز بھی بنا رہا ہے، 7,000 ارب کا خسارے کا بجٹ وہ بھی بنا رہے ہیں. جب سے یہ ملک بنا ہے خسارے کا بجٹ ہم بناتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے کہیں نہیں ہوئے. ہم چونکہ IMF پہ نظر دیکھ رہے ہیں، ورلڈ بینک پہ دیکھ رہے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سعودی کو دیکھ رہے ہیں، جرمنی کو دیکھ رہے ہیں، کہاں سے کچھ نہ کچھ پیسے، کیونکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی سوچ ہی نہیں رہے. ہم بجٹ بنائیں گے، خسارے کا بنائیں گے بجٹ. جو ہماری شیئر ہے وہ شیئر ہمیں ملنا چاہیے.